just 1 minute. Okay, I think we have just completed the grad phi. Just 1 minute. So diversion. Okay, so I will combine these three topics together and then I will explain the theory. So I will add here. So this PPT is, it's theory point of view. Okay, so let me check again. Yeah. So whether my screen is visible? Yes, sir. Okay. So in last lecture we have just started with the del operator, okay, or we also call it as the vector differential operator. Okay, it is called as del operator or nebula or the vector nebula. I think NE ऐसा कुछ तो है, I need to check. Okay, and the vector differential operator. Okay, vector जनरली आप यही बोलते हो, डेल और वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर. ओके, सो रिमेंबर, ओके, इट इज अ वेक्टर. ये क्या है आपका वेक्टर है और वेक्टर ऑपरेटर है. ये ऑपरेटर है, जैसे आपका डेरिवेटिव क्या है, एक ऑपरेटर है ना, डी, कैपिटल डी. डी क्या होता है आपका, एक ऑपरेटर होता है. यू हैव टू ऑपरेट इट ऑन सम वेरिएबल, है ना, यू हैव टू ऑपरेट इट ऑन सम फंक्शन, सम वेरिएबल, ओके, सम डिपेंडेंट वेरिएबल, लाइक दैट. So can anyone tell me what is the definition of this del operator? What is the definition of del operator? Or I into dabba by dabba x. It's I cap basically, j cap dabba by dabba y, and k cap dabba by dabba z. So it's a vector. Okay, इतना बस याद रखो, ये एक वेक्टर है. So on any given vector, okay, what are the possible operations that you can perform? What are the possible operations that you can perform? Anyone? I already explained in last lecture. So what are the possible operations that you can perform? Addition, subtraction, and multiplication. Okay, but in terms of vector, okay, multiplication is nothing but a dot product. You can take a dot product with another vector. If it is a vector, you can take a dot product with another vector. You can take a cross product with another vector, and you can multiply this vector by some scalar. Okay, so this k is a scalar. These are the possible operations that you can perform on a single operator. If you have a vector, okay, these are the possible operations that you can perform. तो जो पहला ऑपरेशन था multiplication by a scalar, that is called as grad phi. So multiplication by scalar to this del is nothing but the gradient of scalar function. Okay, and that is nothing but अभी स्केलर फंक्शन आप फाई ले रहे हो. यहाँ पे फाई मतलब फंक्शन होता है, जैसे आप फंक्शन लिखते हो ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लाइक दैट, इट्स अ फंक्शन. So it is equal to del phi. Correct? It is equal to del phi. So the first concept is the gradient of scalar function. आप यही स्लाइड रेडी करो MCQs के लिए. gradient of scalar. Okay, it simply means multiply that del with respect to phi. आपको प्रॉपर नोट्स भी देता हूँ इसके. तो
and also I think I have prepared the formula sheet, that also I will share. So gradient of scalar is nothing but del phi, where phi is the scalar, and what is equal to this? I cap del phi by del x. Del phi by del x. J cap del phi by del y. K cap del phi by del z. And k cap del phi by del z. And what is the geometrical meaning of this? It is what? Normal vector to the surface phi. Very good. It's a normal vector to surface phi. इतना ही याद रखना है कल के लेक्चर में से. नाउ कम टू नेक्स्ट कंसेप्ट. ठीक है. सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर. ओके. तो इसमें आप क्या करने वाले हो? ओके. नाउ वी विल टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. मतलब एक वेक्टर आपके पास ऑलरेडी है. लेट मी टेक अनदर वेक्टर. सो लेट एफ बार is equal to f1 into I cap, f2 into j cap, f3 into k cap. Let me take another vector, any vector function. Okay. Then the divergence of this vector denoted by this notation. Okay. What is the notation for this? It's a grad phi. MCQ में आएगा ये. So divergence of f bar is nothing but the dot product of these two vectors. तो आप देखो उसी सीक्वेंस से मैं जा रहा हूँ. एक बार मैंने स्केलर से मल्टीप्लाई किया है. अभी ये वेक्टर लेके मैं डॉट प्रोडक्ट लेने वाला हूँ और यही वेक्टर लेके मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेने वाला हूँ. दैट्स इट. These are the three concepts which are called as gradient, divergence and curl. Okay. Now, so can anyone tell me what is the dot product of these two vectors? Everything is there on a screen. Just tell me their dot product. Take a dot product of. हाँ. आई कैप. हाँ. पहला वेक्टर कौन सा है? डेल है. पहला वेक्टर डेल है तो पहले क्या आएगा? डाबा बाय डाबा एक्स और फिर एफ बार है मतलब f1 से मल्टीप्लाई करने. सो कैन आई राइट लाइक दिस? Yes. Okay. So it is basically डाबा f2 बाय डाबा y and डाबा f3 बाय डाबा z. Okay. So इसमें वेक्टर नहीं आएगा नहीं. अरे हाँ सॉरी करेक्ट ना. इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. ओके. इट्स माय मिस्टेक. सॉरी. यस इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी. करेक्ट. सो दिस इज द आंसर. ओके. सो इन अ सिंपल वे यू कैन रिमेंबर दिस इज नथिंग बट f1x f1 का विद रिस्पेक्ट टू x प्लस f2 का विद रिस्पेक्ट टू y प्लस f3 का विद रिस्पेक्ट टू z. ओके. So now my next question is, okay, whether this value is equal to f bar dot del. Whether this value is equal to f bar dot del, or can you tell me what is f bar dot del? Can you tell me what is f bar dot del? f1 del by del x. f1 del by del x. Very good. f2 del by del y. f2 del by del y plus f3 del by del z. So whether these two values are equal. यहाँ पे f1 का डेरिवेटिव जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पे f1 बाहर ही है डेरिवेटिव से. So whether these two are equal? No. Okay. So here you can see. So in general dot product are not commutative. प्रोवाइडेड कौन से केस में कम्यूटेटिव आता है? अगर ये दोनों वेक्टर आपके क्या आते हैं? कांस्टेंट वेक्टर. यहाँ पे एक ऑपरेटर है और यहाँ पे एक वेक्टर है. कांस्टेंट वेक्टर है. सो देयरफॉर इट इज नॉट इक्वल. इफ वन वेक्टर इज ऑपरेटर और इट इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर, देन दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू. ओके. देन दिस रिजल्ट इज नॉट ट्रू. ओके. सो ये एक चीज याद रखो. इसलिए मैंने आपको कल बोला था कि इन जनरल this dot product is not commutative. Okay. So just let me write in a proper way so that I can share with you. f1 का with respect to x, इसी लैंग्वेज में इसको याद रखो, with respect to y and f3 का with respect to z. Done. Okay. अभी इसमें कुछ एक और definition है which is related with this only, which is called as solenoidal vector field. पता है क्या किसी को? Solenoidal vector field. Okay. So when we say this given vector field, so this f bar is actually a vector field.
Okay, so when we say this given vector field is solenoidal, okay, if and only if their dot product is 0. So if this dot product, if the dot product of this given vector field with the del is 0, then we call that vector field as solenoidal vector field. ठीक है, इसका detailing is already there in this PPT. Okay, so I will explain at that time. Okay, but I don't want to go in detail about this, what is solenoidal, what is irrotational. Okay, ये कहीं पे न कहीं पे आप अपने फील्ड में अपने ब्रांच में आप लर्न करने वाले हो, but it is already there in the PPT itself. Okay, but our major focus is on how you check whether given vector field is solenoidal or not. How you check? So mathematical approach is what? Just take a dot product of that vector with a del, that is del dot f bar. If this value is 0, then we call it as solenoidal vector field. इस पे MCQs आपको आने वाले हैं. मैं आपको एक random vector field दूंगा. You have to check whether this given vector field is solenoidal or not. तो उसका del के साथ dot product लेके अगर 0 आ रहा है तो it becomes solenoidal, नहीं आ रहा तो it is not a solenoidal vector field. Okay, so this is your second definition. So now gradient is done, divergence is done. Now let me focus on curl. So the third definition, just 1 minute. Now third definition is curl of vector. Okay, so gradient of scalar is a vector quantity, divergence of a vector is a scalar quantity. और जो थर्ड हम डिफाइन करने वाले डेल क्रॉस एफ बार, मतलब डेल के साथ आप सारे सी एट देन हाउ टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेल. तो एक बार मैंने स्केलर से मल्टीप्लाई किया है, एक बार मैंने एफ बार के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया है, एंड नाउ नेक्स्ट टाइम आई विल टेक अ क्रॉस प्रोडक्ट विद डेल, एंड दैट इज कॉल्ड एज कर्ल ऑफ वेक्टर. सो द थर्ड डेफिनेशन, so my third definition is curl of vector. Okay, so in this case also let me take one vector. So let f bar is equal to f1 I cap, ठीक है, f2 j cap. अभी ये नाम मुझे कैप की ज़्यादा आदत नहीं है, ठीक है, एंड f3, so cap f3 k cap. Okay, and now let me define the curl of vector. So curl of vector is denoted by curl of f bar, and now in this case just take a cross product with the same vector. ठीक है, so can anyone tell me what is the definition of this? What is the definition of del cross f bar? You know the definition of del. For you I will write here again. del की definition पता है, f bar की definition पता है, तो आप मुझे बोलो what is del cross f bar? Now you can tell me. बोलो. Determinant. हाँ, so clear, it's a determinant. What is in the first row? I cap, j cap, I k cap, cap. j cap and k cap. What is in the second row? The coefficients of del. So dabba by dabba x, dabba by dabba y, dabba by dabba z. What is in the third row? The coefficient of f bar, which are f1, f2, f3. So this can be written as, so I cap in bracket. Can you tell me? ये याद रखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक ही लिखो और फिर आगे का कैलकुलेशन आपको समझ में आएगा, बट मैं दिखा रहा हूँ क्या होगा आगे. सो हाउ यू सॉल्व दिस डिटरमिनेंट? सो आई कैप, सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करो. नाउ डू दिस क्रॉस प्रोडक्ट. क्या आएगा क्रॉस प्रोडक्ट? द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f3 विद रिस्पेक्ट टू y minus the partial derivative of f2 with respect to z. Okay, now give minus sign j cap. Can you tell me now this? Partial derivative of f3 with respect to x minus the partial derivative of f1 with respect to z. And the last term is k cap is the partial derivative of f2 with respect to x minus the partial derivative of f1 with respect to y. Done. This is all about the curl of vector. और इसमें भी एक डेफिनेशन है, ओके, दैट इज ई रोटेशनल वेक्टर फील्ड. सो ई रोटेशनल और कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड. डेफिनेशन क्या होगी? when a given vector field is irrotational or it is conservative if their cross product is 0.
Okay, if their cross product is 0. There is one more remark on this which is very very important. So let me give you that. So there is one more remark on this part. So what is that remark? If given vector field f bar is irrotational, it means what? Their क्रॉस प्रोडक्ट विद डेल इज 0. याद रखो ये डेफिनेशन, ये मैथमेटिकली आपको आने वाला है. मतलब एक्चुअली व्हाट इज इरोटेशनल वेक्टर फील्ड, व्हाट इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ इरोटेशनल वेक्टर फील्ड, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, दैट यू विल लर्न इन योर ब्रांच. ओके, एंड ऑलरेडी मेरे पीपीटी में ऐड किया है. इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक. बट मैथमेटिकली हाउ यू चेक वेदर गिवन वेक्टर फील्ड इज इरोटेशनल और नॉट. सो फॉर दैट यू हैव टू जस्ट चेक दिस पार्ट, देयर क्रॉस प्रोडक्ट मस्ट बी 0. ओके, सो इफ गिवन वेक्टर फील्ड इज इरोटेशनल और इफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज 0, देन ये थ्योरम है एक्चुअली, then there exists scalar potential or simply a scalar function. Okay, scalar potential or scalar function phi such that f bar is equal to del phi. What is del phi? Have you read this part? Del phi क्या है? Grad phi. Good. Grad phi. So this is the result. ये थ्योरम है. सो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन क्या होगा कि अगर मेरा f bar, if my vector field f bar is irrotational, I can find a scalar potential phi. I can find a scalar potential phi such that these two values are equal. f bar equal to del phi. मतलब gradient of phi equal to that, क्योंकि आपको पता है gradient of phi is a vector quantity, so it is equal to f bar. सो ऑब्वियसली आपका क्वेश्चन होगा कि वो फाई कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो उसके लिए एक प्रूफ है, बट विल नॉट टेक दैट प्रूफ. सो डायरेक्टली आई विल टेल यू हाउ यू फाइंड दिस फाई, वेयर दिस फाई इज इक्वल टू, ओके, आपके पास एफ बार गिवन है ना, वी हैव गिवन दैट एफ बार. उस एफ बार के लिए आपको फाई कैलकुलेट करना है. सो आई विल यूज दिस एफ बार. तो एफ बार, हाँ, व्हाट इज एफ बार हियर? इन जनरल एफ बार में क्या लेने वाला हूं? f1 इंटू आई कैप, f2 into j cap and f3 into k cap. So what is my phi here? So my phi is integration of f1 dx. f1 को डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करो. सो क्या क्या कांस्टेंट आएंगे यहाँ पे? y and z आर कांस्टेंट. ओके, प्लस टर्म्स इन f2 फ्री फ्रॉम x. f2 के टर्म्स लेने जिसमें x नहीं है विद रिस्पेक्ट टू dy. मैं एग्जांपल लेने वाला, सो डोंट वरी. एंड हियर z इज कांस्टेंट. एंड जो थर्ड टर्म होगा विच इज टर्म्स इन f3 फ्री फ्रॉम x एंड y dz. अभी इसमें कांस्टेंट आ ही नहीं रहा है क्योंकि ऑलरेडी उस टर्म में x भी नहीं है और y भी नहीं है, प्लस c. ओके, आई विल एक्सप्लेन अगेन. उससे बेटर क्या करता हूं, मैं एग्जांपल ही लेता हूं. सो लेट मी टेक f बार इज इक्वल टू xy प्लस z स्क्वायर i बार xy plus y square j bar plus xy z k cap. If this is my f bar, okay, now let me tell you for this example. हाँ, तो पहले आपको क्या करना है, ये जो f1 है xy plus z square, इसको डायरेक्टली विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दैट इंटीग्रेशन? बट व्हेन यू इंटीग्रेट दिस विद रिस्पेक्ट टू x, y and z आर कांस्टेंट. सो कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट इंटीग्रेशन? xy प्लस z स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा?
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई कॉन्स्टेंट है एज इट इज, अगेन जेड स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, सो जेड स्क्वायर इंटू एक्स. क्लियर? Yes, sir. हाँ. Yes, नेक्स्ट F2 में क्या करना है आपको, टर्म्स इन F2 फ्री फ्रॉम x. तो आपको F2 में से ऐसे ही टर्म्स कलेक्ट करने हैं जिनमें x नहीं आ रहा है. ओके, सो कलेक्ट ओनली दोज टर्म्स फ्रॉम F2 विच आर फ्री फ्रॉम x. तो क्या आने वाला है यहाँ पे, क्या आने वाला है, व्हाट आर द टर्म्स विच आर फ्री फ्रॉम x. तो इसमें x आ रहा है तो इसको डिलीट करना है, सो ओनली वाई स्क्वायर. तो सेकंड होगा प्लस वाई स्क्वायर डी वाई. नाउ थर्ड में टर्म्स इन y3 फ्री फ्रॉम x एंड y. आपको ऐसे टर्म्स कलेक्ट करने जिसमें x भी नहीं चाहिए और y भी नहीं चाहिए. सो कैन यू टेल मी दैट टर्म, कैन यू टेल मी दैट टर्म? 0. There is no term because there is only one term which contain the x and y. x भी आता है तो भी डिलीट करते हो आप, y भी आता है तो भी डिलीट करते हो, x and y दोनों आते हैं तो भी डिलीट करने हैं. सो as it already contain x and y, so your term is 0. So you have to consider only 0 there. So 0 into dz. This is the formula. Okay. And don't worry, we will take some examples on all these concepts जो भी मैंने लिए अभी. So this is all about this gradient, divergence and curve. मैंने सिंपल इसमें एक्सप्लेन किया है. So just prepare this 3 slide. So I will explain again what is del operator, gradient of scalar. क्या होता है gradient of scalar? फिर से बोलो मुझे, gradient of scalar वेक्टर आता है या स्केलर आता है? इट्स अ वेक्टर. ठीक है. फिर डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर, इट इज एक्चुअली स्केलर. ओके. एंड देन इट्स डेफिनेशन, व्हाट इज सोलेनोइडल वेक्टर फील्ड, ये भी एक याद रखो. नेक्स्ट कर्ल ऑफ वेक्टर, इट इज अगेन अ वेक्टर. It is again a vector. Its definition, and what is the definition of irrotational conservative vector field. And there is one more remark related with this this irrotational vector field. If it is irrotational, there exists a scalar potential phi which satisfies this condition that f bar is equal to del phi. Okay, where phi is this? आपको हर एक टॉपिक पे इस पे क्वेश्चन आने वाला है. Now let me take those questions directly. Okay. कल के लेक्चर में जो हुआ था वो मैंने कंप्लीट किया है. Now let me start from this. Yes. F bar is given is a vector field, then divergence of F bar, which is a scalar. Can you tell me that? What is divergence of F bar? Means dot product. So what is del dot F bar? Yes. Which option is correct? What is del dot F bar? A. It's a scalar quantity. Done. Vector field is solenoidal. Means what? Del dot product is 0. Vector field is irrotational. Means what? A. Cross product is 0. Their cross product is 0. Not this also, because they are different. Cross product is not commutative. Also in del dot product is not commutative. तो इसको भी गलती से भी टिक मत करो. आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि ये दोनों इक्वल नहीं है. दिस इज डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट. तो जो मैंने दिया है उसी हिसाब से जा. डन. सो नेक्स्ट इज, अब इस पे वो टॉपिक फिर से मतलब इजीली कवर हो जाएगा. हाँ, अभी आपको एक वेक्टर गिवन है एंड उसका आपको डाइवर्जन कैलकुलेट करना. सो एफ बार इज गिवन विच इज 3xz इंटू आई बार 2xy इंटू जे बार माइनस वाई जेड स्क्वायर इंटू के बार. आपको डाइवर्जन कैलकुलेट करना है एट पॉइंट 1 1 1. सो व्हाट इज डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर? डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर इज डेल डॉट एफ बार. कैन यू टेल मी व्हाट इज इट्स डेफिनेशन? तो ये होता है आपका f1, ये होता है आपका f2, दिस इज योर f3. कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डेल डॉट एफ बार? एनीवन बोलो. सो f1 को x से डिफरेंशिएट करो, f2 को y से करो. ये इजी होता है लिखने में, इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ. f3 को z से करो. सो टेल मी विद रिस्पेक्ट टू x इज 3z, with respect to y is 2x, and with respect to z is minus 2yz. So this is your del dot f bar, and calculate this value at 1 1 1. So calculate this value at 1 1 1. बोलो.
3 + 2 5 - 2. कुछ रॉन्ग किया गया मैंने? 3 करेक्ट ना? ऑप्शन ए, यस ऑप्शन इज राइट. ठीक है, डन. यही क्वेश्चन आपको 1 और 2 मार्क्स के लिए आने वाला है. ओके, इसलिए मैंने आपको पहले क्लियर किया था ये टॉपिक स्कोरिंग है. ओके, कुछ ही रिजल्ट है जो आप प्रिपेयर करते हो तो, और डेरिवेटिव या इसके जो कैलकुलेशन है वो इतने डिफिकल्ट नहीं है. नेक्स्ट, विवार इज वेक्टर इज सोलेनॉइडल. उन्होंने ही दिया कि ये वेक्टर सोलेनॉइडल है, मीन्स व्हाट? 10 20. हाँ, ओके. सो व्हाट इज सोलेनॉइडल वेक्टर फील्ड? Zero. हाँ, so del dot v bar is 0. So this part is given. We already given this vector field is solenoidal vector field. So and from this condition we have to find the value of a. So del dot v bar is 0. Okay, it means v1 partial derivative of v1 with respect to x plus partial derivative of v1 with respect to y plus partial derivative of v1 with respect to z is 0. So can you tell me these values? V1 is this, V2 is this, and V3 is this. Okay, so tell me V1 x 1, V1 y 1, and V1 z A. it is equal to 0. This implies a equal to -2. So option D is correct. Done. Come to next. The curl of vector at a point 0 1 2. What is curl of vector field? Cross product. So del cross f bar. So what is that definition? Can you tell me? In first row I, j, k. In second row dabba by dabba x, dabba by dabba y, dabba by dabba z. What is in third row? What is in third row? f1. हाँ, coefficient of f bar. So x square y, x y z and z square y. अभी आप इसके आगे बोलो, आने दो रॉन्ग बट ट्राई करो. सो आई बार एज इट इज करो ये. सो डिफरेंशिएट z square y with respect to y. What is that value? Z2 - H2. Very good. Z square minus, now differentiate this with respect to z is xy. समझ में आएगा ना? ऐसे डायरेक्टली लिखा तो ऐसे ही करना है ना, तो एमसीक्यू में ज़्यादा टाइम जाएगा. माइनस जे बार. ओके, नाउ ये क्रॉस में रिमूव कर देता हूँ. अभी क्या करना होगा? x, हाँ, डाबा बाय डाबा x, डाबा बाय डाबा x ऑफ दिस क्या आएगा? 0 माइनस डाबा बाय डाबा z ऑफ दिस 0 प्लस k bar dabba by dabba x of this yz and dabba by dabba y of this is x square. Now calculate this value at 0 1 2. So calculate this value at 0 1 2 when x is 0. So I bar option C आ रहा है क्या? Okay, so 4 I bar plus 2k bar. Done. ठीक है, ऐसे इजी क्वेश्चन से आपको रहेंगे एग्जाम में. यही वेक्टर में चेंज करूंगा, वैल्यू कुछ चेंज करूंगा, सो इट बिकम अ डिफरेंट क्वेश्चन. यस, सो दिस वेक्टर इज इरोटेशनल, मीन्स देयर कर्ल इज 0. यूजिंग दिस कंडीशन वी हैव टू फाइंड a. ओके, सो लेट मी राइट अ कर्ल. सो i, j, k, dabba by dabba x, dabba by dabba y, dabba by dabba z. यहाँ पे f1 आएगा, दिस 3 कोएफिशिएंट्स. सो इट इज x प्लस 2y प्लस az. अभी जगह ज़्यादा मुझे आगे लेना होगा, लेट मी राइट इट प्रॉपरली. सो नेक्स्ट जो कॉलम होगा जिसमें j आने वाला है, dabba by dabba y आने वाला है, एंड दिस कोएफिशिएंट इज 2x minus 3y minus z. Next is k, then dabba by dabba z, then 4x minus y plus 2z, and this value is 0. It is given, and this value is 0. So let us solve this. So I as it is, इसका with respect this 4x minus y plus 2z with respect to y is -1 minus this with respect to z is
क्या होगा ये अगेन -1 ना, हाँ, सो ये 0 ही आ जाएगा, करेक्ट, -j. नेक्स्ट दिस विद रिस्पेक्ट टू x इज 4, then this with respect to z is a, correct, and plus k, this with respect to x is 2, this with respect to y is 2, so 0. So what is the answer? What is the answer? 4. So j into 4 minus a equal to 0. This implies a must be 4. So option D is correct. Now next, u bar is given, phi is given, आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है. ऐसे केसेस में ना प्रॉपर लिखते जाओ. ओके, सो लेट मी राइट u bar डॉट प्रोडक्ट विथ डेल देन मल्टीप्लाई विथ phi इज इक्वल टू, u bar आपके सामने, दिस इज योर u bar एंड दिस इज डेल वी नो. सो कैन यू टेल मी फर्स्ट दिस u bar डॉट डेल क्या आएगा, पहले वो बोलो. u bar डॉट डेल क्या आएगा, u bar डॉट डेल क्या आएगा, u bar पहले तो u bar के पहले कोएफिशिएंट्स आएंगे. सो करेक्ट है क्या, x स्क्वायर y डाबा x, हाँ, Yes. प्लस y स्क्वायर x क्यूब डाबा y प्लस, सॉरी माइनस है, so minus 3x स्क्वायर z स्क्वायर डाबा z ऑफ phi क्या है, x स्क्वायर y z, मल्टीप्लाई करो. सो इट इज इक्वल टू x स्क्वायर y डाबा x ऑफ x स्क्वायर y z प्लस y स्क्वायर x क्यूब डाबा y of x square yz minus 3x square z square डाबा z of डाबा z of x square into yz. So बोलो क्या आ रहा है, एट पॉइंट 121 कैलकुलेट करना है. सो इट्स लेंदी, तो मैं कुछ उसमें ज़्यादा ये नहीं करने वाला हूँ. विद रिस्पेक्ट टू x क्या आने वाला है, 2xyz, ओके, y स्क्वायर x क्यूब. विद रिस्पेक्ट टू y क्या आने वाला है, x स्क्वायर z माइनस 3x स्क्वायर z स्क्वायर. विद रिस्पेक्ट टू z क्या आने वाला है, x स्क्वायर y. एंड कैलकुलेट करो एट 121. किया है क्या किसी ने, ये 6 आ रहा है क्या, ठीक है. सो मैंने चेक नहीं किया, यू कैन चेक दिस होल कैलकुलेशन एंड देन just put x equal to 1 here, y equal to 2 here, z equal to 1, you may get 6. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ट्राई करना था. ये 3 मार्क्स के लिए आएगा, इसका वेटेज ज़्यादा ही होगा. ओके, आई थिंक दिस वी हैव कंप्लीटेड. हाँ, ये एक टॉपिक मुझे लेना है, सो विल नॉट डन. और एक क्वेश्चन मुझे लेना है, हाउ टू फाइंड दैट स्केलर पोटेंशियल. सो आई थिंक ये यहाँ पे नहीं होगा. एक ही टॉपिक रिमेनिंग है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, जो इजीली हो जाएगा नेक्स्ट किसी लेक्चर में. दिस इज द मीनिंग ऑफ सोलेनॉइडल वेक्टर कर्ल ऑफ इरोटेशनल वेक्टर फील्ड. सेपरेट क्वेश्चन नहीं है क्या, इसमें चेक करता हूँ. This topic is not there. Vector identities, this topic is not there in your syllabus. नहीं तो ये डिफ़िकल्ट हो जाता आपके लिए, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट टॉपिक है. अभी इसमें से जो क्वेश्चन मैं स्टार करके देता हूँ ना, आपको उतने ही प्रिपेयर करने फॉर द एग्जामिनेशन. ओके, सो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू ऑल दिस क्वेश्चन एंड देन विल स्टॉप.
ये बाकी जो है ना आइडेंटिटीज के क्वेश्चन है, बट आपको ये एक प्रिपेयर करना है ना। वेक्टर फील्ड गिवन है, आपको कर्ल कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? डेल क्रॉस एफ बार कैलकुलेट करना है, ये सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो ये मैं स्टार करके दे रहा हूं, आपको इतने प्रिपेयर करने हैं। यहाँ पे भी देखो डेल क्रॉस एफ बार कैलकुलेट करना है, जो अभी हमने किया था। ओके, तो ये आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाएगा। मैं वेक्टर फील्ड दूंगा, आपको उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। क्लियर? इट इज ऑलरेडी ओवर, इट इज ऑलरेडी ओवर। ये क्लियर हो गया पार्ट? यस और नो? नेक्स्ट, हाँ, ये एक आपको कैलकुलेट करें। सो आई विल जस्ट मार्क दिस क्वेश्चन, और ये आपको मैं सॉल्व करके देता हूँ। ये पार्ट नहीं है आपको, ये वेक्टर आइडेंटिटीज के क्वेश्चन है जो इसमें सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है। हाँ, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? द वेक्टर एफ बार इज गिवन which is irrotational. This given vector field is already irrotational, means their curl is 0. Corresponding scalar function phi satisfying f bar equal to del phi. तो यहाँ पे आपको स्केलर पोटेंशियल फाई कैलकुलेट। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, समवन म्यूट योरसेल्फ। हाँ, ओके, so here we need to find phi. Okay, so can you tell me, so this is my f1, this is my f2, this is my f3, so can you tell me what is the formula of phi? If you remember, क्या था phi का फॉर्मूला? What is the formula of phi? Phi integration of f1 dx yz constant, f1 को x से इंटीग्रेट करना है। नेक्स्ट याद आ रहा है कुछ? नेक्स्ट क्या था? terms in f2 free from x dy where z is constant, and next is terms in f3 free from terms in f3 free from x and y, okay, dz plus c. Okay, so can you tell me now? अभी आप बोलो। सो इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखना है मुझे यहाँ पे? बोलो क्या लिखना है यहाँ पे? व्हाट इज f1? 6xy plus z cube dx. Okay, done. Now tell me this next. Terms in f2 free from x? Minus z. Done. And what about last? I don't want x, I don't want y also. 0 plus c. Done. इसको बस कंप्लीट करो। सो फर्स्ट को आपको x से इंटीग्रेट करना है, बाकी सारे वेरिएबल कांस्टेंट। सो करेक्ट है ना? x स्क्वायर बाई 2 आएगा, सो 3x स्क्वायर y प्लस जेड क्यूब कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इसलिए जेड क्यूब x, एंड सेकंड को y से करना है, z कांस्टेंट है तो माइनस जेड वाई प्लस सी। क्लियर? इंटीग्रेशन समझ में आ रहे हैं ना सबको अच्छे से? Yes, sir. So which option is correct? Which option is correct? A. डन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आने वाला एग्जाम में, और मैंने कुछ सॉल्व करके दिए। एफ बार इज इक्वल टू डेल फाई, फाई का फॉर्मूला लिखा है डायरेक्टली, यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन नहीं किया है। टर्म्स इन f2 फ्री फ्रॉम x, टर्म्स इन f3 फ्री फ्रॉम x एंड y, तो 2z ही आ रहा है, आप चेक करो। आई डोंट वांट x हियर, सो ये आ रहा है पूरा, एंड फिर उसका इंटीग्रेशन लिया है। सेम यही क्वेश्चन है, सो लेट मी मार्क दिस क्वेश्चन, और यही मैं पीपीटी अभी इमीडिएटली आपसे शेयर करता हूँ। ओके, इतना ही प्रिपेयर करना है, इसके बाद कुछ क्वेश्चन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं होगा इसके बाद कुछ ड्राफ्ट करना। ठीक है, सो अगेन द सेम क्वेश्चन इज देयर, सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हो। यहाँ पे क्या है, फाई कैलकुलेट करना है बट एट 1 1 0, मतलब फाई कैलकुलेट करो, फिर उसमें x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, z इक्वल टू 0 पुट करो, तो फिर ये हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं करना है आपको प्रिपेयर। I think done. I think done. Okay, so only one topic is remaining, which hardly take 10 to 20 minutes, and that is this syllabus for your IE2 internal evaluation 2. तो जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए यहाँ पे, जो एक्सप्लेन किए, बाकी चीज़ें मैं डिलीट करके ही शेयर करता हूँ आपके साथ। ठीक है, सो दैट विल बी बेटर, तो ये इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। ओके, इसलिए मैं अभी तक PDF इसके अपलोड नहीं किए। सो आई विल शेयर दिस the actual syllabus PDF today itself. Okay,
Okay, any doubt from your side? I2